करंट अफेयर्स किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए। दो करंट अफेयर्स का जो है एक प्रोसेस होता है, ठीक है। मुझे जीएस में बहुत ज़्यादा नंबर आए थे। हाँ आया था, ठीक है, मेंस में। बट मैं जीएस पढ़ाना क्यों नहीं किया पढ़ाना, क्योंकि आई सफ़र्ड फ्रॉम क्लिनिकल डिप्रेशन, ठीक है, and due to clinical depression I had lost confidence. So when I assessed myself that perhaps I will not be able to keep the current affairs update, right? Maybe I am not able to work that much as it requires, and sociology does not require that much. So I thought, okay, I'll be teaching sociology. So what was my preparation strategy, right? Suppose you are thinking of preparing for civil services in 2024, right? So my plan and strategies were always comprehensive, right? ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स दे दिया फिर मेंस में ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे हैं या ऑप्शनल कर लिया, ऐसे नहीं। देयर वाज अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, राइट? So before, I had regular habit of reading newspaper since my childhood, so that was there. But we were not studying from the examination point of view. So definitely many of the information we were not able to retain, right? So what I did, like in our times, what was the times date schedule for exam schedule? We had in the end of May prelims, and after that we had 5 months gap between pre and mains, 5.5 months. So June, July, August, September, October. The mains were conducted in November, somewhere around 17, 18 November. So we had almost 5.5 months, right? Overall process was taking around 1.5 years. Now they have decided to bring it back to 1 year. So now you can see that before in March itself, I think results should be declared this year, right? So when I started preparing, so what I did, I took that India publication, आता है ना, प्रकाशन डिवीजन का India yearbook, right? And in our times, Spectrum was publishing on current affairs. So suppose I have to prepare for 2024. So what I did in 2022 November, by that time they are published for 2022 November exam. जो मेंस होते हैं 22 में, नवंबर एग्जाम में, वो एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले पब्लिश होते थे, because they had to up to date, right? So I took that in November, and then in November what I did, I studied them. Means that was there in those books, everything was there till that day it had happened. So I took around 1 month or 1.5 months to do all those things. Properly prepare किया, एक सीक्वेंस में उसको जो है तैयार किया, ठीक है। इंडिया ईयर बुक जो है ना, उसको मैं फाड़ दिया हर चैप्टर के लिए, और हर चैप्टर के ऊपर जो है अगर कोई पेज है ये, तो ब्लैंक पेज जो है 10-10 लगा दिया ऐसे करके दोनों साइड में, राइट? वॉट एवर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फ्रॉम December 1st I was getting 2022, I started noting them down. जो इंडिया ईयर बुक से पढ़ा था या जो स्पेक्ट्रम से पढ़ा था, वो मैंने अब तक जो हुआ है वो नोट डाउन कर लिया था, एक रजिस्टर बनाया, नोट डाउन कर लिया। हर टॉपिक मान लो इंडिया इंडो पाकिस्तान रिलेशनशिप, इंडिया चाइना रिलेशनशिप एट्सेट्रा, जो भी है, इंडो यूएस रिलेशनशिप, या
वुमेन्स इशूज जो भी था उसमें, वो सारे को नोट डाउन कर लिया पॉइंट वाइज फॉर्म में. सो नाउ आई एम रेडी विद द बैकग्राउंड्स, एंड फ्रॉम January onwards I started reading newspaper ritually. Every day I used to study for 2 hours newspaper, maybe 2.5 hours every day. वो मेरा बचपन से आदत था from 8th 9th onwards, तो उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई. And I started noting down any point that was other than what I had written earlier that came in newspaper. ठीक है. So macro perspectives were completely prepared. ठीक है. जब आपके पास पूरा चीज ये मैक्रो जो है अगर होता है, तो प्रीलिम्स में क्या होता है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस उस समय ज़्यादा आते थे. अभी तो पता नहीं मुझे प्रीलिम्स पे कैसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. फॉर फैक्चुअल क्वेश्चन वी यूज टू सॉल्व क्वेश्चन आयर. उस समय प्रीलिम्स की कोचिंग नहीं होती थी. ठीक है. और आज भी मुझे समझ नहीं आता कि प्रीलिम्स में लोग क्या कोचिंग कराते हैं. मुझे आज भी ये समझ में नहीं आता है कि वो क्या पढ़ाते हैं. कि फलां ने बुक किसने लिखी थी. राइट. सो दिस वे आई हैड प्रिपेयर्ड. सो इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर 1.5 years. So by the time you appear in 2024 prelims, you are complete. इसके बाद होना ना होना आपके इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है. आप गधे हैं तो कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा क्या. और आप में कैपेबिलिटी है तो वो 5 months वाज टू रिहर्स द थिंग्स, रिवाइज द थिंग्स, डू द प्रैक्टिस एटसेट्रा. सो इस टाइप से प्लानिंग किया जाता है. अभी फरवरी में आकर नहीं पूछा जाता है सर प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें. ठीक है. ये ही बताएगा कि मेरा ये ले लो तुम्हारा हो जाएगा. मैं बताना, जब आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करते हैं तो आपकी सब्जेक्टिव एस्पेक्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाती है. उसके बाद सिर्फ डेटा ही बच जाता है. उसके बाद सिर्फ डेटा ही बच जाता है. अरे हर समय अनसीन क्वेश्चन आता था यार. 30 साल पहले के कब जन्म हुआ है तुम्हारा? 98 में, और मैं दिया था 94 में. तो आपको समझ में आना चाहिए. अभी आपको लग रहा है बिकॉज जो चीज डेवलपमेंट उस समय हुआ था, आज की डेट में यू आर फैमिलियर विद देम. सारी जगह वही सब चीज है, तो आप फैमिलियरिटी है. अदरवाइज यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में जो है वो हमेशा ही ऐसी ही अनसर्टेनिटी आती थी. और जब भी प्री कम मेंस अप्रोच रखोगे तो यहां पे ससेप्टिबिलिटी आपकी बहुत बढ़ जाएगी. जब मेंस कम प्री अप्रोच रखोगे आपकी ससेप्टिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी. क्योंकि प्री क्या है, वो स्क्रीनिंग टेस्ट है. ठीक है. मेंस जो क्या है, वो आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट है. तो एलिजिबिलिटी को जो है आप स्ट्रांग करें. ठीक है. उसके बाद प्रीलिम्स के समय लिए कुछ नहीं है. मार्केट में हजारों क्वेश्चन लोग बनाते हैं. हर दिन जो है 4 सेट कीजिए. ठीक है. हर दिन 4 सेट कीजिए आप क्वेश्चन. एक सेट क्वेश्चन क्या, उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं. तो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं. फैक्चुअल क्वेश्चन सपोज आपको नहीं पता है, नोट डाउन कर लो, खत्म बात. उसमें ज्यादा दिमाग क्या लगाना है भाई. कोई फैक्चुअल मान ली किस बुक पे किसने लिखा, फलाना कन्वेंशन कब हुआ था, कहां हुआ था. ठीक है. ये जो एक्रोनिम है इसका फुल फॉर्म क्या होता है. इसमें बहुत ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है. तो जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं उन सारे फैक्चुअल क्वेश्चन को जो है, जो आपको आता है वो तो आता है, जो नहीं आता है उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इमीडिएटली. ठीक है. धीरे धीरे क्या होगा, फैक्ट्स भी तो लिमिटेड है. धीरे धीरे ये होगा कि आप 4 सेट करेंगे तो 2 अननोन मिलेगा. अच्छा, जब मार्केट में जितने भी क्वेश्चन हैं और फैक्ट्स हैं आपने सब कर लिए हैं, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता. सिंपल लॉजिक है. वो आसमान से थोड़ी तोड़ के कोई लाएगा. मान लिया आपने 10,000 क्वेश्चन किए,
बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, और 10,000 क्वेश्चन के फैक्ट्स को आप याद कर लिए, वो आपके मेमोरी में आ गया, ठीक है। उसके बाद के जो फैक्ट आते हैं एक दो, उसके लिए क्यों दिमाग लगाना? आपको नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से फैक्ट कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या होता है कि एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो कहता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। सो एनालिटिकल क्वेश्चन, व्हेन यू आर डूइंग द एनालिटिकल क्वेश्चन, सपोज यू हैव पिक्ड अप एनी क्वेश्चन एंड दिस इज ऑफ एनालिटिकल नेचर, कंसेप्चुअल नेचर, पहले आंसर मत देखो, ठीक है, पहले उसको सॉल्व करो, पूरा दिमाग लगा के सॉल्व करो। इसके बाद अगर गलत होता है, मान लिया आंसर गलत, तो पहले तो एश्योर करो कि आंसर उसने जो दिया वो सही है कि नहीं, क्योंकि बहुत गधे लोग भी क्वेश्चन बनाते हैं। जब मार्केट जो है ना, इट इज फुल ऑफ फूल्स, ठीक है। तो पहले तो वो एंश्योर करो, उसको वेरीफाई करो आप जो है एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। फिर सोचो कि व्हाई डिड यू मेक द मिस्टेक, वेयर इज द कंसेप्चुअल डेफिसिट। तो एक क्वेश्चन के कंसेप्चुअल डेफिसिट को कम करोगे तो उसके अराउंड जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आप दोबारा मिस्टेक नहीं करोगे। जनरली क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन, अच्छा ये है, ये नहीं, ये आंसर है, खत्म, नहीं, उसको एनालाइज कर लो, व्हाई डिड यू मेक द मिस्टेक, राइट? डिड यू हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट्स, डू यू हैव द प्रॉपर कंटेंट। तो एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए 4 घंटा समय लगाओ, तो उसके अराउंड जितने क्वेश्चन होंगे वो आप दोबारा कंसेप्चुअली क्लियर हो जाओगे तो गलत नहीं कर। रट्टा मार विद्या जो है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। थ्रू आउट माई लाइफ, बिफोर एग्जामिनेशन, आई हैव नेवर रिवाइज्ड थ्रू आउट माई लाइफ। और मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में याद है कि 4 दिन का गैप होता था, तो 2 दिन तो सिनेमा देखने में मेरा निकल जाता था, ठीक है। उसके बाद जो है वो तीसरे चौथे दिन एक हमारा बैक पोस्ट होता था, मतलब बहुत बड़ा एरिया था ऑफ NIT राउरकेला, एंड दैट वाज इन ट्राइबल एरियाज। सो बैक गेट, दैट वाज कॉल्ड एज बैक पोस्ट, और वहाँ पे जो है चाय थी, तो दिन भर मैं वहीं मिलता था। अब 20 साल से छोड़ दिया, ठीक है। नया नया होता है ना यंग एज में, तो यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स डूइंग न्यू थिंग्स। हाँ, वो भी बात है, ठीक है। इसको दूध पिलाओ, इससे बचने के लिए फिर धीरे धीरे आदत हो गई, राइट। सो इफ यू डू समथिंग लाइक दिस, तो आपको एग्जामिनेशन के जस्ट पहले बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, और मेमोरी में जो है जब कंसेप्चुअली यू आर क्लियर, मेमोरी में रिटेन रहे। प्रॉब्लम वहां आती है कि व्हेन यू सॉल्व ए क्वेश्चन, सपोज ABCD, राइट, यू मार्क B but the answer is C and you start memorizing that। ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर C होगा, वो क्वेश्चन नहीं आता है, वो क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। वो क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। एनालिटिकल क्वेश्चन में यही है कि द क्वेश्चन सेटर हैज एनफ scope to maneuver. In factual, there is no scope for maneuvering the things, but in analytical question, you have enough scope to maneuver. तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी 1.5 ईयर की बनाएं, ठीक है। एक तो सबसे पहले ये सोचना छोड़ दें, ये आसान है। जैसे सर कहते हैं ना, IAS बनना बहुत आसान है, हैं? IAS बनना बहुत आसान है। मैं 5 बातें, मैं एक बार देख रहा था रील, 5 बातें मैं बता दे रहा हूं और IAS बन जाओगे। और उनका पढ़ाया हुआ आज तक एक भी बच्चा नहीं बना है। अरे वो सब इंटरव्यू में, फ्री में इंटरव्यू करते हैं, वही सब नाम होते हैं। हिंदी मीडियम से सिलेक्शन ही जो है 2% होता है। अब ना खोल दिए हैं, जाता कौन है, ठीक है। तो ये एक तो इसको आसान मानना आप लोग छोड़ दें। मैं डीमोटिवेट करने, आई एम नॉट सेइंग दिस टू डीमोटिवेट यू, आई वांट यू टू रियलाइज द एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द एग्जाम।
right? Secondly, what you see that with whom you are competing. अब इस क्लासरूम को मत देखो, यहां भी एक IITian बैठा हुआ है, ठीक है? IIM, एम्स, Indian Institute of Science, investor bankers, right? They all appear in this examination because still India is power centric society. अभी थोड़ा टाइम लगेगा जब पावर कंसर्न जो है कम होगा, बट धीरे धीरे जो है अभी भी पावर सेंट्रिक सोसाइटी है. बिजनेसमैन को, सिनेमा में काम करने वाले को लोग बेवकूफ समझते हैं. पता है आयुष्मान खुराना इंजीनियरिंग में टॉपर था, गोल्ड मेडलिस्ट. ऐश्वर्या राय वाज एन आर्किटेक्ट. ट्विंकल खन्ना यूज्ड टू स्कोर मोर देन 95% मार्क्स. ठीक है. अडानी वाज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स. बट अभी भी वहां तक हमको पहुंचने में टाइम लगेगा. सो कॉम्पिटिशन इज वेरी फियर्स. ठीक है. विथ दोज पीपल यू आर कंपीटिंग. Naturally, in that situation, do you think it is easy to compete? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का एक ही एडवांटेज है. इफ यू आर नॉट इंटेलिजेंट यू कैनॉट क्वालिफाई IIT. बट इफ यू आर अ mediocre, through sheer hard work, diligent work, you can qualify for civil services. अचीवमेंट थी सिविल सर्वेंट बनने के पहले. प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की है. पढ़ने में खराब होगी तबे ना. कहीं नहीं हुआ था. IIT तो छोड़ दो, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में भी नहीं हुआ था. आज भले रील बना रही हैं, वो बात अलग है. ठीक है, लग रहा है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है. ठीक है. किसी मीडियोकर को IIT क्वालिफाई करते हुए देखा है? मुझे तो नहीं मिला आज तक. और एक से IAS बन जाते हैं मेरे स्टूडेंट्स कई. सो दिस इज एन एडवांटेज दैट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, व्हाट यू डिड इन द पास्ट, दैट मैटर्स नो डाउट, बट इट कैन बी टेकन केयर ऑफ provided you work strategically, you work diligently. ठीक है. तो पहले तो इसको आसान समझना हम छोड़ दें, क्योंकि क्या करेगा ऊपर से 800. आप कितना भी तेज हो, इफ 800 सीट्स आर देयर एंड योर नंबर इज 801, फिर से प्रीलिम्स, फिर से मेंस, फिर से इंटरव्यू, फिर से प्रीलिम्स. 99.7% लोगों के साथ यही होता है. ओनली 0.3% इज द सक्सेस रेट. ठीक है. तो पहले तो ये जो आजकल ये यूट्यूब वाला जो आ गया ना, रील वाला, फेसबुक वाला, ठीक है, इन लोगों ने इतना आसान बना दिया है इस चीज को. हमारे समय में जो हम सोचते थे जब प्रिपरेशन करने के पहले, सो बिफोर थिंकिंग ऑफ इट वी इवैल्यूएटेड आवरसेल्व्स कि हम रेस में जाने लायक हैं कि नहीं है. अभी कोई इवैल्यूएशन ही नहीं करता है. सर आते कहते हैं मैं 5 फॉर्मूला बता दूंगा तुम IAS बन जाओगे. लड़का भी सोचता है कि वो इनको 1,25,000 रुपये दे देते हैं, अगले साल. देखा स्टाइल, वो बाउंसर रखे हुए हैं, वो सर भी बाउंसर रखे हुए हैं, भी बाउंसर रखे हुए हैं. और जब वो लोग इंस्टीट्यूट में एंटर करते हैं तो उनके चारों तरफ जैसे शाहरुख खान के आसपास, सलमान खान के आसपास बाउंसर चलता है ना, वो बाउंसर चलते हैं वहां. मैं देख रहा हूं ना तमाशा. मैं तमाशा देख रहा हूं ना कुछ दिन से. ये जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है ना, तब से ये तमाशा देख रहा हूं मैं कि हो क्या रहा है इस फील्ड में. ठीक है. तो
इस ढंग से एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी तैयार कीजिए, ठीक है। डिफिकल्ट मानिए इसको, अनअचीवेबल डू नॉट कंसिडर इट। ये तो 1 ईयर का हो गया, अभी 5 मंथ का क्या करें? मेरे पास 5 मंथ का कोई उपाय नहीं है, न मैंने आज तक किया है और न मैं सजेस्ट करता हूं। मेरे पास अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी के लिए कोई आएगा तो मेंस एग्जाम के जिस ईयर आपको अपियर होना है उसके 1.5 ईयर बिफोर यू कम टू मी। अरे सर, तो ये तो पता ही नहीं था। अब नहीं पता था तो ये आपकी गलती है, ठीक है। तो अब इसलिए कितना बढ़िया बता। 24 के लिए तो बता दिया, वो तो लिख लिया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। और 2 महीने में कैसे हो जाएगा, 1 महीने में कैसे हो जाएगा, ठीक है। सर कुछ ऐसा बता दीजिए 250 वर्ड का दे दीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी लोग आते हैं। सर जस्ट टेल मी इन 250 वर्ड्स मैं याद कर लूंगा। तो यूपीएससी वाला पूछ देता है आइडेंटिफाई द फैक्ट एंड वैल्यू इन प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। रटते रहिए आप बैठ के। नहीं लिखा है, हाँ। तो फैक्ट और वैल्यू आप नहीं जानते हैं। इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट फैक्ट एंड वैल्यू यू कैन नॉट आइडेंटिफाई देम। दैट्स वेरी सिंपल, राइट। ओके, बहुत सारा भाषण हो गया। इस समय मैं टाइम बर्बाद करता नहीं, लेकिन आज चूंकि तुम लोगों ने पूछ दिया तो कभी कभी दिल के गुबार बाहर आ जाते हैं। लिख दिया मैंने, देखो व्हाट्सएप पे। इसका मतलब तूने चेक नहीं किया।